अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत 19 लाख अफराद में ऐनक की तकसीम की गई। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने तरबियती प्रोग्राम से किया खिताब। SSC पर्चे अफशा केस में बी संजय को अदालत से राहत नहीं मिली। मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जुमेरात की दोपहर बारिश, मजीद 2 दिन बारिश की पेश क़यासी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत हरीश राव ने 50 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के अख्तिताम के मौके पर खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलगू आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत अब तक रियासत भर के 1 करोड़ अफराद की आँखों का मुआयना करने के बाद 19 लाख अफराद में नंबर और रीडिंग की ऐनकें तकसीम की गई हैं, जबकि अभी ये प्रोग्राम 15 जून तक जारी रहेगा। రూపాయికి 84% సర్కారు దవాఖానల కాన్పులు అవుతున్నాయంటే మరి ఎంత మారింది? జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ కాదు ఇది. ఆనాడు 30 పైసలు అయితే ఇలా 84% ఈ జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే ప్రసవాలు అవుతున్నాయి. మా కలెక్టర్ గారిని, మా డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారిని, మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నా. చాలా గొప్పగా మీరు పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఇలా అన్ని సేవలు, ఏ సేవలు అందించడం లేదు. ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా అడుగు దూరంలోనే పల్లె దవాఖానాలు పెట్టినాం. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడే సదాశివపేటలో బస్తీ దవాఖానా స్టార్ట్ చేసినాం. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్యాన్ని గస్తీ కాయడానికి, పట్టణ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని గస్తీ కాయడానికి బస్తీ దవాఖానాలు కూడా ఇవాళ ఎన్నో స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఒక జిహెచ్ఎంసీ హైదరాబాదే కాదు, అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా బస్తీ దవాఖానాలు తెస్తున్నాం. 57 రకాల ఉచిత పరీక్షలు చేయడానికి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు తెచ్చినాం. ఇంతకుముందు పేదలు బయట చేసుకుందరు పరీక్షలు, వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది. ఇప్పుడు అన్ని పరీక్షలు, 57 రకాల పరీక్షల్ని ప్రతి పిహెచ్సిలో, ప్రతి బస్తీ దవాఖానాలో, ప్రతి ఆసుపత్రికి వచ్చే పేదలకు టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ద్వారా 57 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తున్నాం. డయాలసిస్ సేవలు ఆనాడు తెలంగాణ రాకముందు 3 ఉంటే 102 డయాలసిస్ కేంద్రాలు పెట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉచిత డయాలసిస్ సేవలు, డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఆసరా పెన్షన్, బస్ పాస్ కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने इस बात की वजाहत की है कि वो कांग्रेस में ही बरकरार रहते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में सरगर्म रहेंगे, लेकिन बाज़ गोशों से ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस को खैराबाद कर रहे हैं। हालांकि इस बात में ज़रा बराबर भी हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने बताया कि वो भी अपने हल्के पार्लियामेंट भुवनगिरी से अनकरीब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात करेंगे। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने करीमनगर CP रंगनाथ मिश्रा पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने बीजेपी और बंडी संजय को SSC के पर्चा अफशा मामले में बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय को रातों रात गिरफ्तार करते हुए उन पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि हक़ाइक़ ये है कि SSC का पर्चा 9:37 पर प्रशांत ने व्हाट्सएप पर पोस्ट किया और पर्चा बी संजय को व्हाट्सएप पर 11:14 पर वसूल हुआ। इसके बाद बी संजय ने ये पर्चा ना तो किसी रुकने असम्बली और ना ही किसी रुकने पार्लियामेंट के अलावा किसी भी क़ायद को रवाना किया। इसके बावजूद उन पर पर्चे अफशा का इल्ज़ाम मायने खैज़ है। 9:30 పరీక్ష పేపర్ స్టార్ట్ అయితే 9:37కు ఒక అబ్బాయి లోపలి కాంపౌండ్ వాల్ లోపలికి దుంకిపోయినాడని, ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్ అతనికి సహకరించిండని, ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోటో తీసుకున్నాడని, దాన్ని వివిధ టీవీ ఛానళ్ళకి పంపించిండు. కాబట్టి హిందీ పేపర్ లీక్ అయింది అనేటువంటి వార్తల్ని దాదాపు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రముఖ టీవీ ఛానళ్ళు కూడా చూపెట్టడం ప్రారంభించింది. 9:30కి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయింది. 9:37కి ఒక అతను కాంపౌండ్ వాల్ దూకినాడు. 9:37కి అతనికి ఇంకొక మైనర్ అబ్బాయి సహకరించినాడు. అతను ఫోటో తీసుకొని దాన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లలో పెట్టినాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద కేస్. మొత్తం పేపర్ లీక్ అయింది లేదా మాల్ ప్రాక్టీస్ అయింది లేదా పేపర్ బయటికి వచ్చింది అని చెప్పడానికి ఇగో ఇది ఒక
ఉదాహరణ లేదా పోలీసు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం ఇది. 9:37కు ఈ పేపర్ ప్రశాంత్ గారికి రాలేదు. 9:37కు ఈ పేపర్ బండి సంజయ్ గారికి రాలేదు. సిపి గారు, గౌరవనీయులైనటువంటి వరంగల్ సిపి గారు చెప్పినటువంటి మాటల ప్రకారం ఈ పేపర్ బండి సంజయ్ గారికి వచ్చింది 11:23 ఒకసారి, 24 ఒకసారి, 21 ఒకసారి చెప్తా ఉన్నా. ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ 11:20 ప్రశాంత్ అనేటువంటి सीनियर कांग्रेस कायद संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट तवील मुजस्समा नस्ब करने का कोई हक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर की यौम पैदाइश और बरसी को सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद करने की रिवायत को फरामोश कर दिया और न उन्होंने अपने 9 साल दौर इक़्तिदार में एक बार भी अम्बेडकर की न तो यौम पैदाइश ना ही बरसी में शिरकत की। संपत कुमार ने सेक्रेटरीट को अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का खैर मकदम करते हुए इस बात पर तनकीद की कि तेलंगाना में अम्बेडकर के कानून की बजाय केसीआर का कानून चल रहा है। पीडीएसयू कारकुनों और कायदीन ने जुमेरात के रोज़ टीएसपीएससी के दफ्तर के सामने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पर्चे अफशां के खिलाफ धरना देते हुए फौरी तौर पर टीएसपीएससी के सदर नशीन जनार्दन रेड्डी को बरतरफ करने और मुस्तकबिल में मुनक़्क़िद होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहान में शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवारों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त कोचिंग फराहम करने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि इस धरने की वजह से नामपल्ली के अतराफ ट्रैफिक निज़ाम कुछ देर तक दरहम बरहम रहा। ఓటును ప్రక్షాళన చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి పీడీఎస్ విద్యార్థులు లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కి పక్క రాష్ట్రం మీద శ్రద్ధ తెలంగాణ విద్యార్థుల మీద, నిరుద్యోగుల మీద లేదు. కాబట్టి మేము పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 40 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు बीजेपी के रियासी सदर बंडी संजय को अदालत से राहत नहीं मिली। बीजेपी की तरफ से हाई कोर्ट में हिफ्ज़ बेजा दरख्वास्त पर जुमेरात को समाअत हुई। डिवीज़न बेंच जस्टिस अभिनंदन कुमार, जस्टिस पोला कार्तिक ने दरख्वास्त की समाअत की। बेंच ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है और इस मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की दोपहर बारिश और ज़ालाबारी से मौसम कुछ देर के लिए खुशगवार देखा गया। चारशंबे की रात भी शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद से गर्मी की शिद्दत महसूस की गई। जुमेरात की दोपहर 2:30 बजे के बाद से वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और साउथ जोन के बाद इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने 2 दिनों तक मज़ीद बारिश की पेशकशी की है। तेलंगाना की अम्बेडकर सेक्रेटरीट की नई इमारत का इफ्तिताह 30 अप्रैल को होगा। सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। चारशंबे की रात वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक इजलास के बाद ये फैसला किया। इमारत के इफ्तिताह के वक्त का तयन पुजारियों से सलाह मशवरे के बाद किया जाएगा।
रच्चाकुंडा के एलबी नगर में एसएससी इम्तिहान मरकज का मुआयना करने के दौरान कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान को अनोखे तजुर्बे का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि जब कमिश्नर पुलिस मोबाइल फ़ोन के साथ इम्तिहानी मरकज में दाखिल हो रहे थे तब वहां पर मौजूद खातून कांस्टेबल कल्पना ने उन्हें मोबाइल साथ न ले जाने का मशवरा दिया। इस बात पर फौरी कमिश्नर पुलिस ने अपना मोबाइल कांस्टेबल के हवाले कर दिया और खातून कांस्टेबल की सताइश भी की। మీరందరూ కూడా ఫోన్ మీరందరూ మర్చిపోయినారు ఎవరైనా వచ్చు సమ్ టైం మర్చిపోకుండా పక్కన ఉండిపోతుంది। हनुमान जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से राम मंदिर गौलीगुड़े के करीब से वीर हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा से कबल खुसूसी पूजा की गई, जिसके बाद हनुमान की मूर्ति को गाड़ी में रखते हुए यात्रा निकाली गई, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की। गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। मस्कुरा यात्रा कोठी, सुल्तान बाजार, नारायणगुड़ा, चिक्कड़पल्ली, आरटीसी क्रॉस रोड, कवाड़ीगुड़ा से होती हुई ताड़बंद सिकंदराबाद में वाक़ हनुमान मंदिर के लिए रवाना हो गई। ऑल इंडिया बजरंग दल कन्वीनर नीरज डोनेलिया ने शोभा यात्रा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आंध्रा बैंक कोठी के करीब खिताब भी किया। पुलिस की जानिब से यात्रा के लिए वसीतर बंदोबस्त किया गया था। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असम्बली राजा सिंह को कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स ने उस वक्त हिफाजती हिरासत में लिया जब वो एक यात्रा निकालते हुए गौलीगुड़े से शुरू होने वाली वीर हनुमान जयंती शोभा यात्रा में शिरकत के लिए जा रहे थे। मंगलहाट इंस्पेक्टर पुलिस एन रवि कुमार की क़यादत में पुलिस अमला और टास्क फोर्स ने राजा सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस जब राजा सिंह को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी तब वो मुबाहिस पर उतर आए और यात्रा में हिस्सा लेने पर इसरार करने लगे। ताहम पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और गाड़ी में बिठा कर रवाना हो गई। कि राजा सिंह इस तरह की यात्राओं में एक मखसूस मजहब के खिलाफ जहर उगलने और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते आए हैं। ఏ ర్యాలీలో పోవద్దంటున్నారు ఎవరంటున్నారు పైనుంచి అంటే ఎవరు మీ పైన ఏసీపీ గారు ఉంటారు, డీసీపీ గారు ఉంటారు, కమిషనర్ గారు ఉంటారు, డీజీపీ గారు। हम तो हमारे मंदिर भी जाएंगे और प्रोग्राम में भी जाएंगे। मंदिर को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शोभा यात्रा में भी हम जाएंगे। शोभा यात्रा में नहीं मेरे तो बोल दो आप फर्दर जो एक्शन लेना आप। मैं सरकार को कहना चाहूँगा, अगर मुझे अरेस्ट किया जाएगा, अगर हनुमान भक्तों द्वारा अगर कोई भी इश्यू होगा तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा। सरकार जिम्मेदार रहेगी, महमूद अली होम मिनिस्टर जिम्मेदार रहेगा और केसीआर मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेगा। इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। सतीश
हनुमान जयंती के मौके पर दोनों शहरों से छोटी यात्राएं भी निकाली जाती है जो मरकजी यात्रा में जम होने की कोशिश करती हैं। इस तरह की यात्रा घासी बाजार से एडवोकेट मेघरानी की क़यादत में निकाली गई, जिसे विशाल यात्रा का नाम दिया गया था। इस यात्रा में भी बड़े पैमाने पर हनुमान के भक्तों ने हिस्सा लिया। दोनों शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर मौसम अचानक खुशगवार हो गया और कई मकामात पर बारिश हुई और ओले भी गिरे। नामपल्ली, बशीरबाग, हिमायतनगर, मुशीराबाद, रामनगर और दीगर इलाकों में भी बारिश देखी गई। ताहम शदीद गर्मी के बाद अचानक हुई बारिश और ज़ालाबारी का अवाम ने भरपूर लुत्फ़ उठाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने हनुमान जयंती के मौके पर राम मंदिर गौलीगोड़ा पहुंचकर वीन हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाल जाने से कबल खुसूसी पूजा की। उनके हमरा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से मज़कूरा यात्रा के लिए नज़्म किया गया था। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी वार्ड नंबर 5 और 6 में वाक़ कब्रस्तान जाने के लिए जो सड़क तामीर की जा रही है, वहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन भी बिछाई जा रही है। इस तरक्याती काम की लागत तकरीबन 20 लाख रुपये बताई गई है। चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने इस काम का आगाज़ किया। इस मौके पर नुमाइंदा कौंसलर सैयद याहिया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में वार्ड नंबर 5, 6 और 28 में जो शाहीन नगर का जो बड़ा कब्रस्तान है, वहाँ पर ड्रेनेज का मसला था, रोड का मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काउंसलर साहब की नुमाइंदगी पर, सैयद याहिया साहब की और हमारे अलीम साहब और हमारे मोहम्मद भाई की मुसलसल नुमाइंदगी पर यहाँ पर ड्रेनेज लैंड और रोड का भी काम इंशाअल्लाह आज तो ड्रेनेज का काम का आज जारी हुआ, इफ्तिताह भी करें। आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता नडी मैडम के हिदायत पर और हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन वही साहब की हिदायत पर ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं तवक्को करता हूँ कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी सख्ती से हिदायत दी है, ऑफिसरों को भी, कि जल्द से जल्द ये काम को मुकम्मल की जाए, क्योंकि क़ब्रस्तान में जो ज़ाहिरीन आते हैं उनके लिए बहुत मसला पेश आ रहा था। उसके लिए ड्रेनेज का भी ज़रूरत थी और रोड की भी ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी वक्त ले लिए हैं। अभी ड्रेनेज का काम शुरू हुआ जिसकी लागत 20 लाख रुपए है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हमारे काउंसलर्स का और हमारे पूरे तमाम इब्तिदाई कमेटी सदर और मुतमदीन का, जिसकी मुसलसल नुमाइंदगी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से 3 साल से जो काम यहाँ पर लगातार करते हुए आ रहे हैं डेवलपमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़े। हम जहाँ नुमाइंदगी करना है वहाँ नुमाइंदगी करें, जहाँ से फ़ंड लाना है ला रहे हैं। इंशाल्लाह इतना बड़ा काम पिछले 3 साल में नहीं हुआ। जो पानी का काम हुआ, रोडों का हुआ, सीवरेज लाइन का हुआ, जहाँ जहाँ लाइट नहीं थी लाइटां लगा रही। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम आने के बाद और तरक्याती काम, अभी बहुत कम काम हुए हैं, अभी बहुत काम बाकी है। इंशाल्लाह ऐसे ही काम तरक्याती काम जारी और सारे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड का जनरल बॉडी इजलास बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खां की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें तकरीबन 134 एजेंडों को शामिल किया गया था। बोर्ड अराकीन ने तकरीबन 130 एजेंडों को मंजूरी दी, जिनमें पिछले 20 ta 25 साल से काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को रेगुलाइज करना, रोज़ाना की असास पर काम करने वाले मुलाजमीन की उजरत 300 और 500 से बढ़ाकर 800 रुपये योमिया करना और दीगर अहम उमूर शामिल हैं। बोर्ड के इजलास में शिरकत करने वाले अराकीन में मोहम्मद फ़ारूक हुसैन, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मलिक मोतज़म खां के अलावा दीगर शामिल हैं। CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन भी इस इजलास में मौजूद थे। कहाँ पे बेगम पेट वाले में तो गुड ब्रिज लकड़ी का बंदा है, नहीं ग्रीन पार्क चलिए हमारे काम करने भी जैसे ये आ जाओ ना सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से टोटल 134 माने 134 एजेंडे आज बोर्ड में पास हुए हैं, जिसमें ख़ासकर खुसूसी रमज़ान रहने की तरफ से जल्द से जल्द मसाजिद के जितने काम थे, मस्जिद की कमेटियों की, ख़बरस्तान की कमेटियों की, तौलियतों के जितने फ़ाइल्स से पेंडिंग थे वो जल्द से जल्द आज पूरे कंप्लीट हुए। सिर्फ 134 फाइल्स, जिसमें से आप 130 एजेंडे तो पूरे खाली मस्जिद के, मसाजिद के, ख़बरस्तानों के और ईदगाह कमेटियों के थे, आज वो पूरे हम क्लियर कर दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब इसके बाद से जल्द और एक महीने के अंदर ही नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग रख के हम इसको भी इंशाअल्लाह ताला क्लियर कर देंगे। ये स्पेशली रमज़ान रहने की वजह से तौलियतों की, मुतवलियों की जितने मसाजिद कमेटियाँ थे वो सब कमेटीज़ को हम क्लियर कर दिए। ठीक है, महीने में हम एम्प्लॉइज़ को रेगुलराइज करें सर्विसेज उनके, जो काफ़ी ज़माने से कंसोलिडेट पे थे। कंसोलिडेट एम्प्लॉइज़ हमारे पास थे, उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए हैं, क्योंकि बहुत प्रीवियस में जो कि बहुत एक 12-15 साल से, कोई 20 साल से, बहुत बरसों से हमारे पास काम कर रहे थे वक्फ बोर्ड में, जो कि पेंडिंग थे, उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए। ठीक है ना सर। डेली वेजेस और वेजेस का स्टाफ था हमारे पास, जिसको डेली 300 रुपये, 500 रुपये जो दिया जाता था, उन सबको हम 800 रुपये कर दिए कमेटी में रख के। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम ने मुल्क में फ़िरक़ावाराना वाक़यात, हजूमी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम साहिबुल राय शहरियों से अपील की है कि वो मुल्क की यकजहती और कौमी सालमियत को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जनरल सेक्रेटरी फ़ोरम मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फ़ोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद क़बूल बादशाह ख़ादरी शुत्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, ज़ियाउद्दीन नैयर, हामिद मोहम्मद ख़ान व दीगर ने कहा है कि रियासत मगरबी बंगाल, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में गुज़िश्ता दिनों रामनवमी के मजहबी जुलूस के दौरान मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, इस पर मुकामी इंतज़ामिया ठोस कार्रवाई करने से कासिर रहा, बल्कि इन वाक़यात पर सियासत की जाने लगी है। बिहार के ज़िले नालंदा सहराम में हुए मजमूम वाक़े के अलावा राजस्थान में नासिर और जुनैद को ज़िंदा जला देने के वाक़यात में पुलिस खातियों को पकड़ने में नाकाम रही है। उल्टा राजस्थान हुकूमत ने जयपुर बम धमाकों में अदालत की जानिब से 4 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को सज़ाए मौत दिए जाने के फ़ैसले को हाई कोर्ट की जानिब से रद्द करने पर उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया, जबकि हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में राजस्थान पुलिस की सख्त तरीन अल्फाज में सरज़निश की है। पहलू खान के कातिलों को
अदालत से छोड़े जाने पर राजस्थान की हुकूमत ने इस फैसले को बड़ी अदालत में चैलेंज नहीं किया। इन वाक़या से बात वाज़ेह है कि बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के अलावा दीगर जमातों के इक़्तिदार वाली रियासतों में मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इन हालात में यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम आमितुल मुस्लिमीन से रमज़ान के मौके पर बारगाह इलाही में इस्तिग़फ़ार और हालात बेहतरी के लिए दुआ करने और तमाम दर्दमंद शहरियों से मुल्क की यकजहती को बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत 19 लाख अफराद में ऐनक के तकसीम की गई। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने तरबियती प्रोग्राम से किया खिताब। SSC पर्चे अफशा केस में बी संजय को अदालत से राहत नहीं मिली। मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जुमेरात की दोपहर बारिश, मज़ीद 2 दिन बारिश की पेश क़यासी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।